Okay, I hope all of you can hear me loud and clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, बच्चे, okay, good. So let's start with this inert gas system कि हमारा IG सिस्टम क्या है. एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा पूछता हूँ, IG सिस्टम लाने का जरूरत क्या पड़ी? Why this IG system was required? कोई थोड़ी बहुत आपने भी रिसर्च की होगी कि ये क्यों आया सिस्टम. Of course, I am not asking why or how it is working, but why it was brought. So because of the accidents happening in the industry, they thought Fire hazard. because IGS is a it do not support the combustion, so they use it there. Okay, okay. Anybody else? Yeah, very right. If you see in late 60s, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन तो ठीक है, हमने भी की है. वी ऑल्सो कैरीड विदाउट दिस क्रूड ऑयल वॉशिंग, विदाउट दिस IGS टैंकर्स. आई हैव वर्क. तो उस वक्त नहीं था सिस्टम, टैंकर्स चल रहे थे, लोडिंग डिस्चार्जिंग नो इशू. लेट 60 दे फाउंड एक्सप्लोजन्स टुक प्लेस, एंड जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, सो फर्स्ट थिंग दे फाउंड कि यार जब एक्सीडेंट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, व्हाट वाज गोइंग ऑन द शिप. सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे फाउंड ऑन ऑल द शिप्स द टैंक क्लीनिंग वाज इन प्रोग्रेस. लोडिंग में कुछ नहीं हुआ, डिस्चार्जिंग टाइम कुछ नहीं हुआ, ओनली टैंक क्लीनिंग में ही ये सारे जो एक्सीडेंट्स थे. सो इसको कोरिलेट किया गया. देन दे फाउंड कि यार व्हाट हैज गॉन रॉन्ग. ऑफ कोर्स लॉट ऑफ लाइफ्स, प्रॉपर्टी वाज लॉस्ट, बट देन दे फाउंड कि देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक जनरेशन होता है ड्यू टू द जेट ऑफ योर वॉशिंग मशीन्स, चाहे वो पोर्टेबल है चाहे वो फिक्स्ड है, कि देयर इज अ static electricity between the, like whenever there are two dissimilar metals or materials are moving with each other, so there is a static generation. And उससे पहले क्या होता था, we were removing the fire triangle में से कि जी ठीक है fire निकाल दो, and even the atmosphere is combustible when we are not using, so we used to take precautions regarding no sparks, no flame, nothing. उस चीज़ के हम सब precautions लेते थे. इवन डेक पे भी कोई चिपिंग नहीं. व्हेन आई रिमेंबर कि शूज़ भी जो आपके रबर के होने चाहिए, नो नेल्स, कि जिससे कोई स्पार्क हो, इतनी प्रिकॉशन ली जाती थी. तो चल रहे थे टैंक. सो व्हेन दे फाउंड ड्यू टू दिस स्टैटिक, सो दे से कि भैया यस ये तो पॉसिबल है, टैंक वॉशिंग में तो होगा. हाउ टू, ऑयल्स तो ट्रांसपोर्ट करना है, शिप्स तो चलने हैं. एंड देन जब उन्होंने, अब हमने जो आपकी फ्लेमेबिलिटी डायग्राम, इफ यू रिमेंबर व्हाट वी सी, that if we remove the oxygen, and हमने देखा 11% से कम अगर ऑक्सीजन आती है, so then even आपका टैंक का एटमॉस्फेयर जो है कैसा भी है, if you let the flame, let the spark, anything come, चाहे वो स्टैटिक जनरेट होता है, कुछ भी है, as long as the atmosphere is not flammable, कुछ नहीं हो सकता. So that was the reason of bringing this inert gas system into the operation. यार अगर हम अपने टैंक्स में से ऑक्सीजन निकाल दें, लेस देन 11% कर दें, एंड वी आर सेफ, तब कुछ नहीं होगा. फिर अगेन थॉट कमर्शियल वायबिलिटी, यार IG देन दे सो कि भाई जो हमारा बॉयलर है, जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं, नेचुरली इनमें ऑक्सीजन तो है नहीं. So that's why this system was developed, so that to run the ships safely, to carry out all the operations safely. So that was what it gave birth to what we today see, the IG system. So this is what we, आप जो आज ships पे देखते हो, in the late 60s and up till today, the shipping world has been shocked by severe tanker explosions. And उन सब का main reason यही था कि during the tank washing this thing was going on and ships were getting accidents. So most cases it is believed a proper use of inert gas in tanks might have saved the ships and many lives. So consequently, IMO established rules, specifications for the design, construction and use of your inert gas system. Now again, SOLAS chapter 2, guidelines on inert gas systems. Now during operation, oil will nearly
always have hydrocarbon gases in some or all of the cargo tanks, ये तो हमें है. And in certain periods, especially during cargo handling and tank washing, the hydrocarbon gases may be mixed with air. Flammability diagram हमने देखा कि when they mixed with air to explosive concentrations, definitely something can happen. So hydrocarbon gas normally encountered in oil tankers cannot burn in an atmosphere containing less than 11% oxygen. So when they found this, so this gave us a good solution. Here it is better we remove the oxygen. How to remove? With the inert gas. And inert gas कहाँ से लेके आए? Within the ship की जो exhaust gases हैं उन्हें ही हम cool, clean, wash करके वापस we inject into the tanks. तो ये सारा का सारा system what we see today, it is giving us more safety that we can work in such an environment कि by chance अगर कहीं कुछ generation होती भी है static, तो the atmosphere is not allowing. The atmosphere is not flammable, कुछ नहीं होने वाला. So accordingly, one way to provide protection against fire or explosion in vapor space of the cargo tanks is to keep the oxygen below 11%. Of course, as per ISCOT, we take it 8%, which we have discussed. And this is usually achieved using a fixed piping arrangement to blow inert gas into each cargo tank in order to reduce the oxygen content and render the tank non-flammable. तो अब ये system जो है, this is what we do. These are the things which you take care. How to discharge the tanks. तब भी we inject the IG. Loading time of course we don't need because the oil is coming into the tanks. So उसके अंदर जो आपका already inert atmosphere है, that is vented out to the atmosphere. So fire needs oxygen, heat and fuel to burn. So removing one of the elements in this fire triangle will prevent the fire. So instead of removing the heat, we remove the oxygen. So fundamental aspect of introducing inert gas to any compartment that contains a mixture of hydrocarbon is to remove the oxygen. So therefore, we minimize the risk of explosion. But इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ यार हमने inert gas डाल दिया, non-flammable atmosphere है, so हम बाकी precautions ना लें. So please, when you are chief officer, things everyone looks towards you. तो आपको ये सारा सिस्टम सेटअप करना है. हाउ यू सेट द रूटीन ऑफ द शिप कि नहीं भाई ठीक है जो मर्जी है. ऑफ कोर्स वी नो दैट नथिंग कैन हैपन, बट स्टिल all other precautions of no smoking, no sparking, nothing else to be done during any of the operations. Now again, if you see SOLAS chapter 2, that requires an inert gas system to be fitted on all oil and chemical tankers of 8,000 deadweight and above when transporting low flash point cargoes. So अब ये as per SOLAS mandatory हो गया. Fire protection of cargo tank shall be achieved by fixed inert gas system in accordance with the Fire Safety System Code. तो अभी लॉ भी बन गया. So on tankers operating with cargo tank, cleaning procedure using crude oil washing shall be fitted with IG, complying with the Fire Safety Code with fixed tank washing machines. So when first time I remember we have fitted these machines, उससे पहले तो portable से करते थे, off the job, back breaking job it was. But जब ये machines आई तो I was really the happiest person. अरे यार ये तो बहुत फर्स्ट क्लास सिस्टम हो गया. जस्ट ओपन द मशीन एंड व्हाट अ पावरफुल मशीन कि आपके टैंक की जो है डीस्लजिंग एंड ऑल दैट हो जाएगी बिकॉज वी हैव डन मैनुअल डीस्लजिंग कैडेटशिप. सो ऑफ कोर्स उस टाइम आई रिमेंबर द हैप्पीनेस वी हैड कि चलो यार फ्यूचर में अभी डीस्लजिंग भी जो है इतनी नहीं करनी पड़ेगी विद मैन गोइंग इनसाइड एंड फिलिंग अप द ड्रम्स. Double hull spaces fitted with suitable connections and tankers fitted with fixed gas system shall be provided with closed alleging system. So ये भी आ गया आपका कि closed alleging system. Another good thing. So no atmosphere, no oxygen to let inside the tanks. So हमारा alleging system का भी main aim यही था. That's why today you use these UTI VESO or radar tank gauges. So no chances of opening the alleged ports and taking the alleges with tapes and all that. Inert gas, of course, all of us know, means a gas or mixture of gases such as flue gas containing insufficient oxygen to support combustion. And inert condition
means a condition in which the oxygen content throughout the atmosphere of a tank has been reduced to 8% or less by volume by addition of inert gas. And IG plant means all equipment especially fitted to supply, cool, clean, pressurize, monitor and control delivery of IG to your cargo tank system is what we call the inert gas plant. Inert gas distribution system, all piping, walls, associated fittings to distribute inert gas from the inert gas plant to cargo tanks to vent gases to atmosphere and to protect tanks against excessive pressure or vacuum. And inert gas system is of course the gas plant and the distribution system together with means of preventing backflow of cargo gases to machinery spaces, which we will see how these non-return devices are fitted. So this is your IG system. Everything including your plant, your distribution, non-return devices, instruments, everything is called the IG system. Inerting, of course, we all know means introduction of inert gas to a tank with the object of attaining an inert condition. Topping up, of course, we know. Purging also means the introduction of inert gas into a tank already in inert condition with the object of further reducing the oxygen content. So this is why we do the purging. Before doing cow, we sometimes reduce the O2 content less than 8% to be on the safer side. That's the precaution. चलो ये तो हमने देख लिया हुआ. Sources of inert gas. Most of the time we use boiler flue gases. Otherwise, sometimes you may have a small generator, but most of the ships we use the boiler flue gases. The possible sources of inert gas on oil tankers: uptake from the ship's main or auxiliary boiler, or independent IG generator, or gas turbine plant when equipped with an afterburner. Quality of the inert gas, of course, now if you know, you can think of these exhaust gases which are coming out of the funnel. Can anybody guess what is the temperature of these exhaust gases? सर 200 के ऊपर रहता है सर एग्जॉस्ट गैस का 200-300 के ऊपर. It is about 300-350 degrees. आजकल आप बड़ा साहब का लॉग नहीं भरते. Normally as a second officer I remember, so what we have this log abstract अपना नेविगेशन का भरते हैं, पोजीशन, डिस्टेंस, तो उसमें इंजन रूम का भी लॉग होता है, उसमें भी सारा है. तो सम टाइम आई टू फिल अप. हमारे सीनियर चीफ इंजीनियर थे, उनका बड़ा सा 2 में ही भर देते. तो वहाँ पे दे राइट एवरी डे, ऑफ कोर्स दे सेंड द एग्जॉस्ट टेम्परेचर्स which they see the parameters of their machinery. So it is close to 300-350 degrees. Now 300 degree की जो hot gases हैं, can we put into the tanks? No. नहीं सर. Isn't it? So इसीलिए उसी गैस को आप जो बॉयलर की जो इतनी एग्जॉस्ट गैसेस, अच्छा हॉट गैसेस प्लस उसके अंदर लॉट ऑफ सूट, फ्लू जो भी है, उसको भी हमने सेपरेट करना है, बिकॉज वी डोंट वांट टू मक अप आवर टैंक्स. सो इसीलिए आपको ये जो सारी गैस है वहाँ से लेके उसको कूल किया जाता है, क्लीन किया जाता है, लिटिल बिट ड्राई किया जाता है, देन it is put to the tanks. So this system is, of course, I don't know how many of you have gone down in the engine room and seen the IG plant, scrubber tower and all that, or if you do a dry dock and all, sometime in the dry dock they open, see inspection and all that. So then you have a very clear view how this scrubber tower या आपके जो blowers हैं या deck seal है वो कैसी दिखती है. I know you may, अभी तो long time to go, so by the time you become chief officer master you will be dry docking these tankers, so you will have the opportunity to understand कि यार ये system चलता कैसे. Now अब अपने जो methods of gas replacement है, of course we have seen, we will see how these gases are passed to the tanks from the IG plant. So basically gas replacement जो हमने अपने cargo tanks में जो replace करनी है gas, उसको कैसे किया जाए. There are basically 3 operations which involve the replacement of gas. जब हमने इनर्टिंग करनी है तब हमने अंदर से टैंक एटमॉस्फेयर या जो गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर है उसको निकालना है. पर्जिंग, हाइड्रोकार्बन कंटेंट उसको कम करना है, या फिर गैस फ्रीइंग की एंटायर जो अंदर का आपका कंटेंट है, इनर्ट गैस है जो भी है,
उसको हमने रिप्लेस करके फ्रेश एयर अंदर डालनी है. So these are the basically 3 operations when we need what you call the gas replacement. So in each of these replacement operations, one of the 2 processes can be used, या तो dilution method या फिर displacement method. So these are very simple to understand कि dilution और displacement method क्या है. Now dilution में क्या है, like if we look at the sketch, that we inject this Ig into the tank. So यहाँ पे little with high pressure, so that it gets mixed up, it dilutes the atmosphere and then whole air is thrown out. With this, Ig replaces the whole thing by diluting the whole atmosphere. So this is what we call the dilution method. It assumes the incoming gas mixes with the original gases to form a homogeneous mixture throughout the tank. The result is a concentration of the original gases decrease. And in practice, the actual rate of gas replacement depends upon the volume or the flow of the incoming gas. Naturally, in this case, we inject the Ig with a high pressure. Velocity of the gas should be more so that it reaches right down and mixing up with the entire atmosphere of the tank, dilutes it, and then finally it is thrown out. So for complete gas replacement, important entry velocity of the incoming gas is high enough for the jet to reach the bottom of the tank. It is therefore important to confirm the ability of every installation using this principle to achieve what we have seen, the high velocity. Of course, फिर आपको एक tank करना, so that we have a high velocity. Otherwise, जो आपका दूसरा method है, what we call the displacement method. Here we put the gas with a low velocity. It's like a layer formation कि हम उसके ऊपर एक Ig की layer and it keeps on pressing. आपके जो हाइड्रोकार्बन कंटेंट है, which are heavier gases, उनको फिर हम पर्ज पाइप के थ्रू निकाल देते हैं. So replacement requires a stable horizontal interface between lighter gas entering at the top of tank and heavier gas being displaced from the bottom of the tank through suitable piping, what we call the purge pipe. So this method requires relatively low entry velocity of gas, and in practice more than one volume change is necessary. So how this looks like? Yes, यहाँ से हमने again Ig entry into your tank. So it forms, it just presses the entire hydrocarbon, other gases through the purge pipe, which is just about half a meter above the tank top, and आपकी सारी gases, and we keep monitoring here what is the Ig content or what is the O2 content or HC content, so we know where do we stand. So this is what most of the time I have been using. This is the best method. ठीक है, इसमें 1 or 2 complete जिसे कहते हैं वॉल्यूम चेंजेस, 2 वॉल्यूम चेंजेस एनफ, आपका पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर जो है Ig और तो O2 कंटेंट जो है इमीडिएटली कम आ जाता है. So this is the displacement method. Important to confirm availability. Again, how these things are designed. इसमें हम प्रेशर को कम करना है, 2 टैंक्स खोल देते हैं, 3 टैंक्स, so you get a velocity, I mean the Ig pressure is reduced. So हमें लो प्रेशर से डालनी है so that it basically pushes all air inside the tank systematically. चलो ये तो हो गया. Now general policy, control of tank atmosphere. Is tankers fitted with Ig system have their cargo tanks kept in non-flammable condition at all times. So ये चीज आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि wherever we are, whether we are in ballast passage, loading, discharging, जो भी कर रहे हैं, that my tanks are in inert condition. It may happen sometime you have to do the repairs, you have to do the inspection, but you must know यार ये टैंक मैंने इंस्पेक्ट किया, इसका Ig wall बंद है, isolated है ये टैंक, and then finally we will definitely before loading make it inert again. So at no stage any tank should be in normal condition. It should be all the time in inert condition. Oxygen content, of course, less than 8% by volume, and atmosphere within the tank should make the transition from inert condition to gas free. Again, in case we need gas freeing, then we all know that how we are going to do the gas freeing. कई बार इस पे भी question है gas freeing पे, because it has happened. Accidents have taken place while this gas freeing or without, you know, thinking or without bypassing the what we call the
purging, we straight away introduced the fresh air and landed up in a problem. So इस पे भी ऊपर कई बार आपको question आ जाता है that while carrying out gas freeing, why purging is necessary. So इसके ऊपर भी you should be very thorough with this कि gas freeing के time में it is little more critical operation than when inerting. So in practice this means before any tank is gas free, it would be purged with inert gas until hydrocarbon content is below critical dilution line. And when while tanker is in a gas free condition before arrival, tank should be inerted again. Now it looks very simple कि सर ये तो ठीक है तो सब करेंगे ही, but due to lot of work pressure, lot of things going on in your mind, it has happened that it might slip, and by the time you arrive and suddenly you say oh अब आपने टैंक को खोला and then दूसरे भी टैंक्स जो हैं उनका एटमॉस्फेयर भी खराब हो जाता है. So this is most important that in case you are done gas freeing, so उसको re-inert करना भी important है. So in order to maintain cargo tanks in non-flammable system requires. सर हमें हमेशा इनर्टेड होना चाहिए सर. Yes, क्योंकि yes. कुछ केमिकल्स है वो हम नॉन इनर्टेड कंडीशन में भी लेके जाते हैं सर. या केमिकल्स के लिए यस है कि केमिकल्स का बच्चे अगेन देखिए केमिकल्स में डिपेंड्स कि आपकी जो HC कंटेंट है वो कितना है. Some chemicals may be toxic. Most of the time the chemicals have a toxicity. अब यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल हैज गॉट अ वेरी हाई HC कंटेंट, हाइड्रोकार्बन कंटेंट. तो यहाँ तो थोड़ी सी भी एयर मिक्स हुई तो आपका इमीडिएटली फ्लेमेबल कंडीशन में आ जाओगे. केमिकल्स का है कि यस अगर वहाँ पे इफ यू सी दैट इफ इट इज उसका जो हाइड्रोकार्बन कंटेंट है अगर वो कम है, हो सकता है उसमें टॉक्सिक वेपर्स ज़्यादा हों, देन IG का इतना मीनिंग नहीं है कि ठीक है टॉक्सिसिटी इज गोइंग टू रिएक्ट, इट इज गोइंग टू रिएक्ट अगर मैं उसको इनहेल करता हूँ या तब वो ह्यूमन हेल्थ को हार्म करेगी. फिर HC का तो डेंजर क्या है कि जैसे ही ऑक्सीजन से मिक्स हुई प्रोपोर्शन में आई मीन राइट प्रोपोर्शन में एंड बाई चांस चाहे वो स्टैटिक जनरेशन हुआ था, चाहे वो कोई भी स्पार्क हुई, चाहे डिपिंग की, कुछ भी किया, एंड यू विल फाइंड द प्रॉब्लम टेकिंग प्लेस. आई थिंक now it's more than 2 years. I remember when institutes were open, so one of our Indian ship में explosion हुआ था. Now I don't want to name, but it was a sad thing. The cadet died. Exact story तो पता नहीं लगती, वो तो the person who is facing what is going on they only know. But कुछ ना कुछ तो investigation में आता है कि that ship was going for loading. एंड लोडिंग के जाने से शी वॉज इन बैलास्ट कंडीशन. तो नेचुरली बैलास्ट में है तो समटाइम इंस्पेक्शन भी चलती है, सर्वे भी चलते हैं कि चलो यार इस पोर्ट पे डिस्चार्जिंग हो रही है, तो लॉट ऑफ टाइम उसमें भी कुछ ना कुछ टैंक इंस्पेक्शन का काम था. अब उन्होंने क्या किया कि ठीक है टैंक इंस्पेक्शन करनी है एज यूजुअल व्हाट वी हैव स्टडीड हियर, क्या टैंक इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है टैंक्स क्रूड ऑयल वॉश करेंगे, वाटर वॉश करेंगे, उसके बाद गैस फ्री करेंगे. एवरीवन डज इट, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, नोबडी टेक्स द शॉर्टकट और एनीथिंग. सो उन्होंने ठीक है प्रॉपर किया, बट अगेन जब वो सर्वेयर गया तो व्हेन दे सर्वेयर्स वर गोइंग सो दे फाउंड कि टैंक में स्टिल स्लज इज देयर. अब स्लज है तो इसे किया नेचुरली स्लज होगी तो इंस्पेक्शन का कुछ मीनिंग ही नहीं बनता कि अगर आप देख ही नहीं सकते कुछ तो ऊपर आए तो उन्होंने कहा कि भाई टैंक्स में स्टिल देयर इज अ स्लज, सो इसको थोड़ा सा और क्लीन कीजिए. अब एग्जैक्ट स्टोरी कहाँ क्या हुई, किसने किया, सो दे से ठीक है. अब उसके बाद नाउ इमेजिन, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंस्पेक्शन हाफ इंस्पेक्शन हुई, ऊपर से उन्होंने देखा कि यार नहीं स्लज है, नहीं इंस्पेक्शन नहीं हो सकेगी. अब आपको अगर उन्होंने कहा है कि भाई इसकी थोड़ी और क्लीनिंग कीजिए, तो अब आप कैसे प्रोसीड करोगे. इमेजिन यू आर ऑन द शिप. आई वॉन्ट से चीव सर, आप कोई भी किसी भी स्टेज पे हो, अगर आपको करना है तो आपके मन में क्या आएगा, इफ आई हैव टू क्लीन द टैंक तो मैं क्या करूँगा. वेरी प्रैक्टिकल थिंग है, ये होता है कि हमें ठीक है इवन यू गो फॉर इंस्पेक्शन एंड यू फाइंड नहीं यार स्लज है वहाँ पे, चलो गैस तो आपने गैस फ्री कर दिया है, तो यार वो दिखेगा नहीं, कुछ देख ही नहीं सकते,
कोई लॉन्गिट्यूडनल्स देखने हैं, कोई क्रैक देखना है, कुछ देखना नहीं दिखेगा। अब आप क्या करो? एनीबॉडी? उसको निकलवाएंगे सर सर उसको। कहाँ पे है? पोर्ट पे सर? टैंक में? नो नो, शिप इज रनिंग एट सी में। एट सी में इमेजिन आपने डिस्चार्जिंग किया, आप चल रहे हो, आपको इंस्पेक्शन करनी है टैंक की, आप सर्वेयर हो। समटाइम आई डू द इंस्पेक्शन माई सेल्फ है, ठीक है, सर्वेयर हमारे से ज़्यादा क्या देख लेगा, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस है, बट हम भी तो इंस्पेक्शन कर, हम भी तो इतनी चीज़ों को देख सकते हैं, हम भी देखते हैं। बिफोर आई प्रेजेंट द शिप टू द सर्वे, तो मैं खुद इंस्पेक्शन करता हूँ कि देखूँ यार हाँ कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है। ठीक है सर, बन के एटलीस्ट सर्वेयर के साथ एक दो बार जाके आपको भी पता लग जाता है क्या देखना है। सो जस्ट इमेजिन, ओके, यू आर इंस्पेक्टिंग द टैंक एंड यू फाइंड द टैंक में स्लज है, नीड्स मोर क्लीनिंग। नेक्स्ट स्टेप ऐसे तो इंस्पेक्शन नहीं हो पाएगी सर, फिर क्लीनिंग करनी पड़ेगी। क्या करोगे? क्लीनिंग करेंगे सर, उसकी टैंक क्लीनिंग, और स्लॉप टैंक में ट्रांसफर करेंगे वो। बताइए, प्रोसेस बताइए ना। आपने वाटर वॉशिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है, बंद किया और वाटर वॉश शुरू कर दिया, नहीं? दिस इज व्हाट दैट शिप डिड। तो पहले आईजी सर डालेंगे, पहले आईजी हाँ, डाल के फिर करेंगे तो ये। अब आपको आया, देखा ना। सो दिस इज व्हाट द एनीबॉडी, आई वोंट से कि यार सर्वेयर वांट्स टू हियर दिस, मैं यही चीज आपके मन में देखता हूँ, और यहीं पे कुछ ना कुछ शॉर्टकट हुआ। अब किसने किया? आई एम वेरी श्योर कि हो सकता है काम चल रहा हो, चीफ ऑफिसर में भी टायर्ड, उसने ठीक है कि ठीक है सर्वेयर जा रहे हैं, ड्यूटी ऑफिसर है, कैडेट है, कोई भी है, कि चलो इंस्पेक्शन जी कर लीजिए, उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने जो भी इंस्पेक्शन कर रहा था सर्वेयर, उसने कहा होगा, and हमारे कैडेट ऑफिसर जो थे उन्होंने उठाया कि जैसा क्लीनिंग करनी है, हाँ ठीक है कोई नहीं, बंद कीजिए, स्टार्ट द वाटर वॉशिंग। टैंक बंद किया, वाटर वॉशिंग शुरू कर दी। सपोज वाटर वॉशिंग में शुरू करता हूँ, कुछ होगा? टैंक गैस फ्री है, ठीक है, मैंने वाटर वॉशिंग कर दी, वाटर वॉशिंग का साइकिल दे दिया, कुछ होगा? तो वाटर और ऑयल का तो ये ना मतलब मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर ठीक है, कोई वो बात ज्यादा नहीं। मतलब। हाँ, मिक्सर बनने दे, तब क्या हो गया? लेकिन उसका वो तो उसका ना इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलते हैं वो ना ज्यादा है, हाँ, मतलब सोचिए, वाटर और ऑयल का मिक्सचर। देखिए, अब देखो क्लास में दिस इज द बेस्ट थिंग, अगर आप इतना आप सोच सकते हो, टेक 5 मिनट्स, ऑल ऑफ यू कैन थिंक कि हाँ यार क्या हो रहा है, आई एम वेरी श्योर यू कैन आंसर एनीथिंग इन द एग्जाम्स। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सर। तब क्या होने दे, जनरेट होगी, तब क्या स्टैटिक जनरेट होगा, ठीक है, आपका पावरफुल जेट चल रहे हैं, जेट जब भी जेट होगा, आई मीन चाहे वो हॉट वाटर है चाहे वो कोल्ड वाटर है, कि यस दीज मशीन्स उससे सर स्पार्क क्रिएट हो सकता है ना सर? अच्छा, स्पार्क कब क्रिएट होगा? आपने मशीन को वॉश किया, मैंने आपको बताया है कि वी यूज टू डू द वॉशिंग, टैंक वॉशिंग बिफोर आईजी भी तो होती थी। जब आईजी नहीं थी, वॉशिंग मशीन्स नहीं, तो पोर्टेबल वॉशिंग मशीन तो थी। पोर्टेबल मशीन्स को हम लोड करते थे और हम उसको गर्म पानी से धोते थे, हॉट वाटर वॉश होता था। अब ये समझने की बात है कि ठीक है, अब जब उनको उन्होंने सेकेंड टाइम वाटर वॉश दिया, अब आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने वाटर वॉश दे दिया है, मैंने टैंक को इनर्ट नहीं किया, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देर इज अ स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेटेड इनसाइड। अब वो स्टैटिक को जब तक आप डिस्चार्ज नहीं करते, स्टैटिक डिस्चार्ज कैसे होगा? अब प्रॉब्लम कब आई कि उन्होंने उसको वॉश करके उसके बाद जब उसकी डिपिंग की, चेक किया कि टैंक ड्राई है कि नहीं है, और जब उसने उसके अंदर टेप या जो भी साउंडिंग रॉड या जो भी डाली उसको डिप करने के लिए, वो जब आपने डिप करने के लिए डाला, तब वहां पे स्पार्क होगी, अगर आपने उस टेप को अर्थ नहीं किया हुआ था, एंड देन द प्रॉब्लम विल टेक प्लेस। अदरवाइज आप वॉश कर रहे हो, उसको रहने दीजिए, वॉश करके 1 घंटा रहने दीजिए, कुछ नहीं होता, स्टैटिक जो है एक्यूमुलेट हुआ, इट विल डाई डाउन, वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपने। पर आपने साथ साथ उसको वॉश किया, एटमॉस्फेयर अंदर वैसे भी फ्लेमेबल था, क्यों? ऑक्सीजन थी प्लस हाइड्रोकार्बन था, ठीक है, फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, टैंक को छूते ही नहीं, हम बंद ही रहने दे, वैसे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बट अब साथ जैसे ही आपने अले स्पॉट खोल के उसके अंदर आपने टेप या कुछ भी डाली साउंडिंग लेने के लिए,
तब वो प्रॉब्लम आएगी, फिर वो स्टैटिक डिस्चार्ज होगा एंड देन आपका टैंक गया। अब यहाँ पे आता है कि प्लीज रिमेंबर इज नो पॉइंट स्टार्टिंग, बच्चे इसको मैं कितनी स्लाइडें दिखा दूँ, हम इसको पढ़ के सब कुछ वहाँ पे लिख दें, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ठीक है, अगर मेरे को टैंक ठीक है आई इंस्पेक्टेड यार, उसको वापस वॉश करना है तो सबसे पहले कि भैया बंद करो, स्टार्ट द आईजी, इनर्ट द टैंक अगेन। ज्यादा से ज्यादा आपका एक आधा घंटा 1 घंटा जाएगा, लेट द इनर्टिंग गो ऑन। हम चेक कीजिए उसका HC कंटेंट जो है या O2 कंटेंट जो है उसको हमने कम लेके आना, 4% 5% पे लेके आना, सिंपल। वो शॉर्टकट हुआ ना कहीं ना कहीं, सच तो सामने नहीं आएगा बट पॉसिबिलिटी है। जो इन्वेस्टिगेशन जो भी करते हैं उनको पता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई। क्या गलती हुई? शॉर्टकट। स्ट्रेट वे ठीक है वॉश कर दिया, अरे ठीक है वॉश भी कर दिया था, फिर उसको इमीडिएट डिप नहीं करना चाहिए था, उसको रहने दे, बंद रहने दे। अगर गलती हो भी गई है कोई बात नहीं, उसको रहने दीजिए, बट बेटर है कि हम उसको पहले री इनर्ट करते, फिर उसके बाद उसकी एक साइकिल वॉशिंग देते, 1 घंटा उसको और वॉश करते, फिर उसको स्ट्रिप करते, ठीक है सब कुछ को स्लॉप में जाने दीजिए। अब आपका टैंक इनर्टेड कंडीशन में है, अब आप आराम से उसकी साउंडिंग लीजिए, जो मर्जी लीजिए। ऑक्सीजन नहीं अंदर होनी चाहिए, स्पार्क होती भी है अगर ऑक्सीजन ही 5% है। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल कि आप एक टैंक में मीथेन डाल दीजिए पूरी गैस, आपकी LPG जो है, बट उस टैंक में से ऑक्सीजन पहले निकाल दीजिए पूरी, उसके अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं है, इवन 1%, 2%, 3%, 4% ऑक्सीजन रखिए और अपनी LPG डाल दीजिए विच इज हाईली फ्लेमेबल, डालिए उसके अंदर पूरी एक स्पार्क डालिए, शॉर्ट सर्किट दीजिए, मजाला आपके टैंक को कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं होगा, है नहीं ऑक्सीजन ही नहीं है, मिक्सर भले जलेगा ही नहीं। तो ये चीजों को आपके मन में आना चाहिए कि हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं, ये करना है, नो शॉर्टकट नहीं करना। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द इनर्ट in order to maintain cargo tanks in non-flammable condition, inert the empty cargo tanks, be operated during cargo and ballast handling, purge the tanks prior gas freeing and top up pressure in cargo tanks when necessary. तो इतना आपने अगर समझ लिया, आई थिंक यू नो कि यार इस IGS की एप्लीकेशन क्या है और ये IG करती क्या है। चलो अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं, सिस्टम है क्या, कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 3 पार्ट्स, प्रोड्यूस द इनर्ट गैस, cool and clean the gas and distribute the gas. This is what our system is. अब इसकी composition, what all it contains, before it is scrubbed and after the scrubber, इसके percentage क्या रह जाती है। Mostly it has got nitrogen about 80%. आपकी जो flue gases आती हैं they have nitrogen and carbon dioxide about 14%, oxygen 2 to 5%. Normally exhaust gases में you have hardly any oxygen, especially from the boiler flue gases, because जिसके अंदर सारा का सारा most of the fuel is burnt, so you have hardly any oxygen there. Water vapor, carbon monoxide, NOx, SOx and soot. Now before it is washed there is a lot of soot, but after washing you reduce the soot, everything gets collected in the scrubber tower. Now this is how your IG का basically you call it a block diagram and this is what is expected कि आप ये अच्छा एक ब्लॉक डायग्राम लेबल्ड वाला जो है अगर एग्जाम में बनाते हैं तो 50% मार्क्स यहीं से आगे, वेरी कॉमन ये क्वेश्चन पेपर्स में आता है, दैट योर IG सिस्टम और sketch and describe the IG system of a crude oil tanker. Boiler flue, boiler uptake valves, you take the exhaust gases from through the uptake valves into the scrubber. We will see the scrubber also. You wash the gases, everything is washed down here, cooled through the demister, little bit moisture is observed and then it is taken suction by the blowers. So these 2 blowers are there. इसके बारे में भी है what you are saying, इनकी कैपेसिटी 125% of the total discharge capacity of the ship. क्यों कि मेरे पास 4 पंप्स हैं, अगर 4 पंप्स जो हैं 2000 मीटर क्यूब से भी डिस्चार्ज करते हैं, सो इफ आई पुट ऑल द 4 पंप्स फॉर डिस्चार्जिंग 8000 मीटर क्यूब ऑफ एयर की सप्लाई मेरे को टैंक्स में चाहिए. सो आई हैव these blowers, so these blowers should be capable of giving me at least not 8000
but 10,000 meter cube, 125%, so that there is no vacuum. How nicely they have devised. And then from these blowers, gas goes through your pressure regulating valve, and maybe रास्ते में आपका fixed auto analyzer भी है, and ये pressure regulating valve जो है is like the brain, ये सबको control करता है. And finally it comes to your deck area. So up to the pressure regulating valve, everything is in the engine room, non-hazardous area, and यहाँ पे अब ये hazardous area में enter करती है your IG from the engine room. First thing it goes to your deck seal, इसके बारे में भी पढ़ेंगे. And then you have a non-return valve and deck isolating valve. 3 non-return डिवाइस तो पहले यहाँ लगा दिए उन्होंने. आइडिया कि ये जो आपके टैंक्स की जो गैसेस हैं, जो कार्गो वेपर्स हैं, दे शुड नॉट गो बैक. सिंपल सिस्टम इट इज कि यहाँ से आपने गैसेस ली हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है, एंड यू आर blowing it through with your blowers into your cargo tanks through these various devices. IG main, which runs on deck right up to your forwardmost tank, and then it branches to your individual tanks with the separate branch walls of individual tanks. Please never shut these walls. काफी टाइम होता है, it may be a requirement, आपने टैंक में जाना है तो आपने इस टैंक को आइसोलेट कर दिया है, एंड वो कई बार वॉल बंद ही रह जाता है. If you have worked closely with GWasser, I think cadet stage होती है when you work very closely with GWasser, so you do all these things, you learn all these things. तो हम इसके ऊपर एक रोप लगा के रखते थे कि अगर ये वॉल बंद है तो पतली जो हीविंग लाइन आधा मीटर की वॉल के स्पिंडल को बांध देते थे, तो दूर से ही डेक से पता लगता था ये वॉल बंद है. अदरवाइज जितने वॉल खुले हैं वो छोटी हीविंग लाइन जो है डेक पे पड़ी होगी कि हाँ भी ये all the walls are open, because this can again cause a disaster कि अगर ये IG या isolation valve, एक टैंक तो है नहीं, so many tanks, कितने टैंक्स को हम रोज चेक करते रहेंगे. एंड फाइनली सेफ्टी के लिए आपके पास PV ब्रेकर, and then the gases are vented out through your masterizer. So this is your basically sketch, and मैं यहीं पे suggest करना चाहूँगा कि when you make this sketch, please make it in your answer sheet in the landscape size में, because lot of time I have seen कि हमारा जो आंसर शीट है हम उसे दूसरे फॉर्म में ले लेते हैं, पोर्ट्रेट फॉर्म में, फिर वो यहीं तक आता है, फिर हम यहाँ से पाइपलाइन घुमा के नीचे में, तो वो डायग्राम जो है थोड़ा शैबी दिखता है. तो आपके पास आंसर शीट है, उसको लैंडस्केप साइज में ले लीजिए एंड एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए अपने शीट पे कि यार हाउ आई कैन एडजस्ट एंड नाइस लेबल. अगर इतना लेबल कर दिया आपने तो एग्जामिनर, आई थिंक एग्जामिनर क्या उसके माइंड में भी आता है, या द पर्सन हु कैन मेक द डायग्राम ही नोज द IG सिस्टम, एंड फिर आपने थोड़ा बहुत उसको डिस्क्राइब करना. सर PV ब्रेकर इज नॉट नेसेसरी ना, उसके अलावा कुछ और एडिशनल सेफ्टी भी हो सकती है. PV breaker, it is again, if you ask me, it is a safety device. Why? In case अगर आपका टैंक प्रेशर जो है, PV ब्रेकर करता क्या, इट इज जस्ट PV ब्रेकर. इसके अगर नाम ही देखिए, प्रेशर वैक्यूम ब्रेकर. इन केस एक्सेस प्रेशर डेवलप्स इन योर टैंक किसी भी कंडीशन में, एंड हम देखेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, सो आपका एक्सेसिव प्रेशर यहाँ से वेंट आउट हो सकता है. और सर हमारे वाले केमिकल टैंकर पे सर ये PV ब्रेकर नहीं दिया हुआ था, एक एडिशनल PV वॉल दे दिया था, बड़ा PV वॉल था. नहीं, वो बच्चे उसको, दैट इज फॉर सेकेंडरी मींस. केमिकल टैंकर में जो आपके 2 PV वॉल हैं, दैट इज अ सेकेंडरी मींस ऑफ वेंटिंग. एक एडिशनल सारे टैंक्स के लिए एक बड़े वाला था, बाकी इंडिविजुअल अलग थे सर. PV ब्रेकर नहीं था शिप पे. ओके जी सर. वो भी हो सकता है, बट अगेन देखिए PV वॉल क्या चीज़ है. PV वॉल इज अगेन अ बेसिकली अ मैकेनिकल थिंग. अब ये जो सिस्टम काम करता है, व्हेन आई कम टू दिस PV ब्रेकर, चलो आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है. ये जो PV ब्रेकर है, इसमें इट इज आपको दिख रहा है जैसे इट इज जस्ट अ वाटर फील्ड हियर. ये सिस्टम फुल प्रूफ. PV वॉल जो है वो मैकेनिकल है, उसके अंदर डिस्क ने ऊपर उठना है.
आई स्टिल कैनॉट फॉरगेट 1985 छत्रपति शिवाजी। तो लंच करके यूनिफॉर्म में ही थे, यूनिफॉर्म क्या वाइट शर्ट होती थी, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट। तो पता नहीं डेक पे चला गया क्या हुआ, तो इस पीवी वॉल को लगा कि प्रेशर ज़्यादा था, तो देखा यार पीवी वॉल चलता है कि नहीं। उसकी थोड़ा सा लीवर उठाया और पूरा का पूरा जितने उसके वेपर्स थे वहाँ से निकले, और वो शर्ट काफ़ी देर तक मैंने संभाल के रखी। मुंह माँ तो सब काला हुआ, शर्ट भी पूरी उसके ऊपर। बिकॉज क्या होता है, इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस, इट विल गेट स्टक। अगर ये स्टक हो जाता है, यही है, इसीलिए आपके सेकेंडरी मीन्स ऑफ वेंटिंग आए हैं कि आपका ये टैंक है, इमेजिन यही वाला एक टैंक है, और ये आपने यहाँ पे एक पीवी वॉल लगाया हुआ है, और ये पीवी वॉल जो है इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस, एंड आई डोंट थिंक एनी नोबडी कैन से कि नहीं सर ये स्टक नहीं हो सकता, इट इज फुल प्रूफ। नो, मैकेनिकल है सर वो अंदर अंदर मॉनिटर में दिख जाता है सर, फिर वो मैनुअली रिलीज करवा देते हैं ना। एग्जैक्टली। सो मतलब यू हैव टू पे अटेंशन। ये जो पीवी ब्रेकर है इसको किसी को देखने का नहीं, सिर्फ आपको ये देखना है एज लॉन्ग एज इसके अंदर पानी होना चाहिए बस। अब यहाँ पे आपको इसको मॉनिटर करना है, अगर ये स्टक हो गया तो आपका टैंक प्रेशराइज होना शुरू हो जाएगा, क्या करोगे। इसीलिए ये सिस्टम बनाया कि ठीक है ये पीवी वॉल स्टक होता है, नहीं उठता है, एक्सेस प्रेशर जनरेट होता है, तो आपका पूरा का पूरा आईजी लाइन जो है, आपके पास इतना सिस्टम है, ये प्रेशराइज होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये प्रेशराइज होएगा, बिकॉज सब कुछ बंद है, मास्टराइजर बंद है, यहाँ पे भी आपने चाहे इसको बंद किया, आफ्टर लोडिंग आइसोलेशन भी बंद कर दिया, ये सारे टैंक्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, होने दीजिए प्रेशराइज। होता है पॉसिबल डे टाइम, दिन में आप गल्फ से चल रहे हो, 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ऑयल गर्म होगा, वेपर्स नेचुरली एक्सेसिव वेपर प्रेशर डेवलप होगा टैंक्स में, हाई प्रेशर आएगा ही आएगा। अगर ये नहीं उठता तो ये सेफ्टी डिवाइस है, ये पानी निकल जाएगा, आपका एक्सेसिव प्रेशर यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। Now this cannot be a secondary means of venting. No, it is a safety device कि before your tank plating को कुछ हो, ये उसको ब्रेक कर देगा। Same way vacuum, night time हो गई, sometimes there is excessive fluctuation of the temperature, diurnal variation. दिन में 50 डिग्री है, रात को 20 डिग्री आ गया टेम्परेचर, टैंक्स में वैक्यूम पन्ना डेवलप हो जाएगा। ऑफ कोर्स यू हैव द अलार्म सिस्टम एंड ऑल दैट, लो अलार्म, लो अलार्म एंड ऑल दैट, सीसीआर ईसीआर सब जगह है, बट बच्चे दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, अलार्म्स कैन फेल एनी टाइम। एंड एक्सेसिव वैक्यूम हुआ तो अगेन ये सारा का सारा पानी सक कर लेगा, इट विल सक एटमोस्फियर, टैंक को डैमेज तो नहीं हुई ना। दैट इज द होल आइडिया ऑफ दिस पीवी ब्रेकर। अब यहाँ पे अगर आप कहते हो पीवी वॉल, तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा कि यस, जब वो पीवी वॉल लगाया है आपके पास सेंसर्स दिए होंगे उन्होंने। अब वो सेंसर्स ऐसे होने चाहिए कि फुल प्रूफ की, यानी कि एक ही टाइप का, जैसे आपका ठीक है हाई प्रेशर अलार्म्स आर देयर, अलार्म भी है और सेंसर भी होगा कि टैंक्स में हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है, देन यू गो एंड रिलीज द प्रेशर, दैट्स ऑल, इजंट इट। सो ये सिस्टम होगा। सो दिस इज द वेरी बेसिक्स। उसके बाद आज टेक्नोलॉजी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो आपने मेरे को टच कराया, पर बस एनीवे वी हैव टाइम, आई विल टच ऑन द सेकेंडरी मीन्स ऑफ वेंटिंग ऑल्सो। उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि सेकेंडरी मीन्स ऑफ वेंटिंग क्या चीज़ है, तो उसको भी करेंगे। चलो ये तो आपका हो गया डायग्राम, या ये वाला डायग्राम, आई विल सेंड यू बोथ, जो भी आपको अच्छा लगता है, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग एंड देन रीडिंग। अब इसमें अगर आप देखिए, यू हैव अ सिस्टम हेयर कि अगर ये प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व है, इन केस देयर इज समथिंग टेक्स प्लेस और देयर इज एक्सेसिव ऑक्सीजन कंटेंट इज हाई, तो देयर इज अ रीसर्कुलेशन लाइन, ये वाल्व बंद हो जाएगा, द आईजी ब्लोअर्स के थ्रू इट विल गो बैक टू योर रीसर्कुलेशन लाइन, बैक टू योर स्क्रबर, फिर ये वॉश होके अगेन देन इट विल, इफ द O2 कंटेंट और एनीथिंग इज देयर देन इट विल गो बैक। आप इसी ब्लोअर्स को यू कैन यूज ऑन फ्रेश एयर मोड ऑल्सो, जैसे हमने गैस फ्रीइंग करनी है, these are the best blowers, you see this is normally a fresh air intake, ये पाइपलाइन भी यहाँ से आ रही है, इंजीनियर जस्ट हैव टू चेंज, इन वॉल्स को शट कर देंगे, आपकी जो स्क्रबर्स इनलेट वॉल्स हैं उसको शट कर देंगे एंड ओपन दिस फ्रेश एयर इनलेट, एक ही ब्लोअर बहुत है, बाकी को बंद कर दीजिए, फ्रेश एयर विल कम टू योर टैंक्स। सो ये IG सिस्टम जो है इट कैन बी यूज्ड फॉर इनर्ट गैस एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड ऑन फ्रेश एयर मोड, पावरफुल ब्लोअर्स हैं,
गैस स्प्रिंग इंस्टेड ऑफ हाइड्रो ब्लोअर, जो छोटे से ब्लोअर एक एक टैंक पे लगाऊं, वी कैन यूज दीज ब्लोअर्स आल्सो फॉर द गैस स्प्रिंग आल्सो. System, IG system consists of flue gas isolating walls located at the boiler uptake. अब आपको लिखना है, कई बार आ जाता है sketch and describe. So write briefly, चाहे आप उसको bullet points में ले लीजिए कि okay, from the boiler intake or the flue gas isolating walls, then come to the scrubber, then come to the blowers, then come to your pressure regulating wall, deck seal, उन सबको कर दीजिए. So basically it is explain how the system works. Flue gas isolating walls located at the boiler uptake points through which hot dirty gases to the scrubber and demister. Here the gas is cooled. In the scrubber tower, the gas is cooled, cleaned before being piped to blowers, which deliver the gas through the deck water seal, non-return wall and deck isolating wall to the cargo tanks. Pressure regulating wall is fitted downstream the blowers to regulate the flow of gases to the cargo tank. उसको रिसर्कुलेट भी कर सकता है इन केस एक्सेसिव प्रेशर इज देयर, सो वो भी उसकी ड्यूटी है प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल की. लिक्विड फिल्ड पीवी ब्रेकर टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर और वैक्यूम फ्रॉम कॉजिंग स्ट्रक्चरल डैमेज टू द कार्गो टैंक्स इज फिटेड ऑन लाइन. एंड फॉर डिलीवरिंग इनर्ट गैस टू कार्गो टैंक्स ड्यूरिंग डिस्चार्ज, डीबैलास्टिंग, टैंक क्लीनिंग एंड फॉर टॉपिंग अप द प्रेशर ऑफ द गैस इन टैंक्स ड्यूरिंग अदर फेजेस ऑफ द वॉयज. इनर्ट गैस मेन, ये जो आपका है आईजी मेन जिसे कहते हैं, दिस पाइपलाइन जो है, मेन पाइपलाइन जो है, इट रन्स फॉरवर्ड फ्रॉम डेक आइसोलेटिंग वॉल फॉर द लेंथ ऑफ कार्गो टैंक्स राइट अप टू फॉरवर्ड. वहां से ये ब्रांचेस आउट टू द इंडिविजुअल टैंक्स. पर्पस ऑफ स्क्रबर. नाउ स्क्रबर टावर, अब आप स्क्रबर के बारे में लिख सकते हैं. द पर्पस ऑफ स्क्रबर इज टू कूल द फ्लू गैस, रिमूव द मोस्ट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट सूट. All three actions achieved by direct contact between the flue gas and large quantities of seawater. Now here the gas enters the bottom of the scrubbing tower. Gas is cooled by being passed either through a water spray or bubbled through a water seal. This is your scrubber tower. Engine room में you can have a look, but even your tankers पे नहीं है कुछ नहीं. It is just a enclosed, a huge thing where the gas enters from here. Here is a water, it bubbles through the water. Then there's a packed bed of beads, spray, which all the gas is basically obstructed so that it goes. There are baffle plates जिसके बीच में से ये गैस slowly निकलेगी, getting washed, ठंडी भी हो जाएगी, and जितना इसका सूत है everything gets down, and finally ये जो moisture है, demister pads are there just to observe the moisture, ताकि ये गैस यहाँ से जितनी इसका वाटर वेपर कंटेंट अगर थोड़ा बहुत, पूरी ड्राई तो नहीं हो सकती, थोड़ा सा इसको वाटर कंटेंट को ऑब्जर्व करता है, एंड देन फ्रॉम हियर इट गैस गोज टू योर ब्लोअर्स. In the scrubbing tower itself, the gas moves upward through downward flowing water for maximum contact between gas and water. Several layers made up of one or more following arrangements are fitted: spray nozzles, tray of packed stones or plastic chippings, perforated impingement plates, जिसके बीच में से ताकि गैस की जो मूवमेंट है उसको स्लो डाउन किया जाए, उसको थोड़ा कूल किया जाए, और उसका जो पर्टिकुलेट मैटर है उसको बेसिकली सेपरेट किया जाए. टॉप ऑफ द और डाउन स्ट्रीम ऑफ द स्क्रबिंग टावर, वाटर ड्रॉपलेट्स आर रिमूव्ड बाय डेमिस्टर्स. Scrubber should be capable of dealing with quantity of inert gas required, and its construction should allow for hot corrosive gases. Of course, it is quoted. Scrubber tower is a well taken care के अंदर जो उसके गैसेज आनी, दे विल बी corrosive, यानी कि थोड़े 6 महीने के बाद स्क्रबर टावर में होल हो गया. Performance of scrubber at full gas flow should be such to remove at least 90% of SOx and to remove solids effectively. Drainage of effluent should not be impaired when ship is fully loaded. अब इसके ऊपर भी मार्क होल आती है कि ये जो आपका स्क्रबर का पानी है उसको कैसे डिस्चार्ज किया जाए, उसके अंदर सारा सूत है, सब कचरा है. It is like today they are installing these scrubber towers in the funnels also. Anybody has experienced new installation of scrubbers in the funnels for your sulfur content को reduce करने के लिए? Yes sir, container ships पे होता है वो. Yeah. So वहाँ पे भी यही है. Finally ये जो आपका सारा का सारा basically just washing the exhaust gases
सो दैट एटमॉस्फेयर जो हमारा एनवायरनमेंट जो है उसको हम बचा सकें। फिर ये पानी को आई थिंक दे पुट इन वन ऑफ द बैलास्ट टैंक्स, कहीं ना कोई टैंक बनाया जहाँ पे ये पानी को ड्रेन किया जाता है। प्रोडक्ट कैरियर्स मोस्ट स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स में बी नीडेड फॉर द प्रोडक्ट क्वालिटी। वहाँ पे गैस थोड़ी आपको साफ चाहिए, मोर क्लीन आईजी चाहिए, सो दैट हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो। Blowers again used to deliver the scrubbed flue gas to the cargo tanks. Now SOLAS requires at least 2 blowers shall be provided, which together shall be capable of delivering IG to cargo tanks at the rate of at least 125% of the maximum rate of discharge capacity. Normally you have each blower is capable of giving you 125% of the capacity. Normally they run one blower is enough, एक के ऊपर मेंटेनेंस कर सकते हैं, इसको कुछ हुआ तो आप दूसरा वाला यूज कर सकते हैं। एंड इसका ये ड्रेनिंग सिस्टम भी है, इनकी जो ब्लोअर्स की केसिंग है ताकि इसके अंदर कोई पानी कुछ भी इकट्ठा होता है, सो दे हैव द सिस्टम टू ड्रेन दिस ब्लोअर्स एंड पावरफुल ब्लोअर्स। सो दिस इज हाउ इन द, अगर आप देखोगे इंजन रूम में, सो दिस ब्लोअर्स आर फिटेड फ्रॉम द स्क्रबर टू दिस एंड फाइनली द गैस कम्स टू योर डेक। ईच ब्लोअर हैज इनलेट and a discharge valve. Blowers may also have an air inlet and may therefore also be used for, जो मैंने आपको कहा था fresh air intake भी आप ले सकते हो इन blower से for gas freeing. Again material used for these blowers is again coated, or the material is such that it doesn't get so bad because they are handling corrosive gases. Casing should be fitted with drains. ड्रेनिंग के लिए भी आपके पास सिस्टम है इन ब्लोअर्स में से। Sufficient openings provided to permit inspection and failure should be indicated by an alarm. अगर आपके ब्लोअर्स फेल होते हैं, IG प्लांट को कुछ होता है, anything which fails means IG cannot be delivered to the tanks. So normally you have the alarms. So we know that what to do. I am in the CCR. If the IG fails, so we check. Sometimes it just trips and it immediately comes back. So then no need, आपके टैंक्स में पॉजिटिव प्रेशर है, इमीडिएटली तो नेगेटिव प्रेशर नहीं होने वाला। 600-700 मिलीमीटर प्रेशर पे आप डिस्चार्ज कर रहे हो, there is nothing to worry. बट हाँ कि अगर ज़्यादा देर लगती है, अलार्म आया, then we have to stop discharging, simple. किसी शिप्स में हो सकता है ऑटो ट्रिप भी हो, जैसे ही ब्लोअर्स ट्रिप हुए पंप भी ट्रिप हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको टैंकर्स पे थोड़ा सा यू हैव टू बी अलर्ट एज कंपेयर टू द अदर शिप्स की व्हेन यू आर लोडिंग डिस्चार्जिंग। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव, सी ऑल द ऑपरेशंस, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। अलार्म्स तो लगे ही हुए हैं, बट अलार्म का मतलब भी पता होना चाहिए कौन सा अलार्म आया और क्या हो रहा है। O2 कंटेंट हाई है, उसका भी अलार्म आ जाएगा। हाई लो हुआ, उसका भी अलार्म आ जाएगा। So it is similar like जैसे ब्रिज पे there are too many alarms. आजकल BAM भी फिटिंग हो गया, नहीं, BAMS ब्रिज अलार्म मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे भी वही है, CCR में भी आपका too many alarms. So we have to be familiar किया या कौन सा अलार्म आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये नहीं कि सडनली सब कुछ ही ट्रिप हो गया। हाँ जी, हाँ बोलिए बच्चे। सर ये रात के टाइम पे अगर आईजी का प्रेशर टैंक का लो हो रहा है, नेगेटिव में अगर जा रहा है, तो सर उस टाइम पे आईजी टॉप अप करना चाहिए या खोल देना चाहिए मास्क, जब हवा भी आ जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं? नो अभी बच्चे टॉप अप, ठीक है। वो ब्लो आपका जो अलार्म आएगा ब्रिज पे भी आएगा, CCR में भी आएगा, इंजन रूम को भी आएगा। दैट्स व्हाई दे आर गिवन 2 अलार्म्स, वन इज लो प्रेशर एंड वन इज लो प्रेशर। एग्जांपल, एक आपके टैंक में प्रेशर से अबाउट से 200 मिलीमीटर पे आ गया तो लो प्रेशर अलार्म आना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे ही आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, 100 मिलीमीटर वाटर गेज तक प्रेशर आ गया, फिर वो लो अलार्म आना शुरू हो जाएगा। लो अलार्म विल वेक अप एवरीबॉडी। तो इंजन रूम वैसे ही आपको पूछेगा भी क्या हुआ, ये फॉल्स अलार्म तो नहीं है, उसको बोलो ना बाबू, प्लीज स्टार्ट योर IG प्लांट एट 200 मिलीमीटर एंड टॉप अप। सर अगर मान लो सर किसी का ध्यान नहीं गया और ये अपना पीवी जो है ना, फिर उठ जाएगा, फिर PV ब्रेकर उठ जाएगा, फिर इट विल सक द एटमॉस्फेयर। तो उससे एटमॉस्फेयर जो अंदर जाएगा तो उससे कुछ हजार तो नहीं ना?
कुछ नहीं होने वाला उसमें। क्या है कि आप चल रहे हो, सो नाउ यू नो, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ठीक है अगर बाई चांस वो पीवी ब्रेक भी होता है, इट सक्स द एटमोस्फेयर, टैंक डैमेज होने से बचता है, तो क्या हो, लिटिल ऑक्सीजन हैज गॉन, फुली लोडेड टैंकर है। अब उसके अंदर अगर आप वेपर स्पेस में इमेजिन कीजिए, वेपर स्पेस पे क्या होगा, 100% हाइड्रोकार्बन ही होगा। टू रिच है सर, मतलब टू रिच कंडीशन है। या तो थोड़ी सी अगर ऑक्सीजन गई है तो उसके लिए अब आपको केयरफुल है कि यार टैंक को खोलो मत, उसको साथ जाके उसके साथ कुछ करो मत, इजंट इट, उसके अंदर कुछ आम डाले मत। क्योंकि चलो आई थिंक ऑफ द वर्स्ट, आई एम नॉट सेइंग कि थोड़ी ऑक्सीजन गई, आई से कि नाउ दैट अंदर का एटमोस्फेयर इज बिकम फ्लेमेबल, रहने दीजिए उसको, कुछ नहीं होता। थोड़ी देर के बाद फिर दिन में वेपर्स जनरेट होंगे, टू रिच कंडीशन आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द टू रिच कंडीशन, isn't it? When there is too rich condition, जब जो आपका हाइड्रोकार्बन जो है वो काफी ज्यादा है, तब भी जो है वो क्या कहते हैं उसे, कंबस्टन कैन नॉट टेक प्लेस। बट इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हुआ और सडनली जाके टैंक खोलने शुरू कर दिया और उसको कुछ ना कुछ अंदर उसमें डिपिंग डुपिंग, नो नथिंग। जब हमने डिस्चार्ज करना है उसके बाद हमने जाके डिस्चार्ज करना है, जब आपने इवन डिस्चार्जिंग से पहले हम क्या करते हैं, पैलेजिंग जहाज, व्हेन वी टाई अप द शिप एट डिस्चार्जिंग टर्मिनल, तो उससे पहले हम उसको क्या करते हैं, पैलेजिंग भी तो करते हैं, इजंट इट? यस सर। Yes, sir. यस, तो एमएमसी टेप से जो हमने करनी है उसको सिर्फ आपने टच करना है, बॉन्डिंग जिसे कहते हैं, कि हाँ आपने उसको करके फिर अंदर डालते हैं। तो वैसे तो इसीलिए पॉजिटिव प्रेशर है कि अंदर जब तक आप जाते हो पॉजिटिव प्रेशर है, एयर जो है, जैसे ही आप अलेज पोर्ट का कैप खोलोगे अपनी एमएमसी डालने के लिए, यू विल फाइंड दैट अंदर से जो गैसेज हैं वो बाहर आएंगी, अंदर तो कुछ जाएगा ही नहीं। ओके, सो ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस आपने रखनी है कि हाँ कुछ नहीं हुआ। अगर एक दिन हुआ, दूसरे दिन आप दिन में चाहे उसको फिर वापस आईजी से प्रेशराइज कर दीजिए। वैसे तो स्पेस हार्डली एनी स्पेस, 10-20 सेंटीमीटर की स्पेस होती है, या 20 सेंटीमीटर, एलएच कितनी रखोगे आप, 98% तो लोड करते हो, दैट इंक्लूड्स योर इवन टैंक डोम का वॉल्यूम ऑल्सो 2% जो होता है, तो टैंक इज ऑलमोस्ट फुल। सर जनरली सर ना रात के टाइम पे अपन से ना मतलब देखा है, या तो आईजी टॉप अप कर देंगे और या फिर ना थोड़ा मास्टर थोड़ा खोल देंगे तो उससे भी एयर मतलब आ जाती है, मतलब उसका प्रेशर 0 हो जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। और दिन के टाइम पे सर जब प्रेशर बढ़ता है तो अपन खोलते ही है मॉइस्चराइजर निकालने के लिए, निकल जाता है। यस, आप मॉइस्चराइजर डिपेंड सर, कुछ केमिकल्स के केस में ऐसा नहीं कर सकते। यस, पीवी वॉल उठ जाएगा, एक्सेसिव प्रेशर आएगा, मॉइस्चराइजर खोलने की जरूरत ही नहीं है, आपके पीवी वॉल शुड बी वर्किंग, पीवी लिफ्ट हो जाएगा, हाई वेलोसिटी वेंट। मॉइस्चराइजर उससे ऑयल आने का सर मतलब वो होता है ना खतरा, मतलब तो ऑयल आएगा तो एकोमोडेशन गंदा हो जाएगा, तो मॉइस्चराइजर का दूर होता है तो उसी को मतलब खोल देते हैं। आई डोंट थिंक सो। हाँ, नजदीक वाला ठीक है, आप कह रहे हो ठीक है कि हो सकता है, बट ऑयल तो नहीं आता बेसिकली। अगर आप देखिए जो आपका एचवी हाई वेलोसिटी वेंट है वो भी डेक से आई थिंक 2-3 मीटर की हाइट पे ही होता है। स्प्रे आएगा, मैंने बताया नहीं, आई हैव स्पॉइल्ड माय शर्ट, स्प्रे टाइप आता है कहीं भाई, थोड़ा सा ऑयली मिक्सचर आता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है तब थोड़ा बहुत स्प्रे आपका नीचे डेक पे, इट्स बेसिकली द वेपर्स, उसके साथ स्प्रे आता है। बट अगर आप मॉइस्चराइजर को भी थोड़ा सा उठाते हो कोई बात नहीं, बट लेट द पीवी टेक केयर। अगर इफ यू आर नॉट ऑल द टाइम देयर, अगर आप हो एक्सेसिव प्रेशर को रिलीज करने में, देयर इज नो हार्म इन ओपनिंग द वेंट्राइजर टू रिलीज द एक्सेसिव प्रेशर। चलो बच्चे, टाइम हो गया, आपकी भी क्लास है, मेरी भी क्लास है नेक्स्ट, तो